Hello everyone. Today's topic is introduction to basic investments. So what is an investment? An investment is when you put your money in a bank or a property or something else with a particular goal. So you buy a house, you buy land property, you deposit your money in a bank. So all that is considered as an investment. Why? Because you have a particular goal. Now there are several types of investments. First is mutual fund, second is fixed deposit, stocks, bonds, risk management, portfolio building, and the last one is debentures. Okay, so first one is mutual fund. Now what is a mutual fund? Mutual fund is a investment fund that pools money from many investors to purchase securities. Okay, so you invest your money in a mutual fund. What happens is the mutual fund it has many types of investments, like stocks are there, bonds are there, debentures are there. Okay, and it pools money, मतलब it gathers money from different sources. ओके, तो वो सबका जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वो सब आप लोग को डिवाइड किया जाएगा. ओके, सो देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स that the interest and dividend is divided according to the ratio of your investment to everyone. Okay, so this is safe because why? Because you are not investing in only one particular investment type. Okay, there are not only stocks, there are not only debentures, all the types are there. Okay, so एक investment अगर fail हो गया तो दूसरा investment आप लोग का रहता है. Okay, so this is a safe mode. Second one is fixed deposit. This is more safe. Why? Because your money is safe in a bank. Okay, but bank ऐसा कुछ trustworthy होनी चाहिए. Okay, so what is a fixed deposit? Now it is a tenure deposit. Tenure deposit मतलब उसका fixed time period रहता है. Okay, 1 साल, 2 साल, 5 साल भी रहता है. It's a tenure deposit account. Okay, तो वो अकाउंट में आप लोग आपका पैसा डालोगे और वो उधर लॉक हो जाएगा पैसा, आप निकाल नहीं सकते. यू आर नॉट एबल टू विड्रॉ दैट मनी टिल द मैच्योरिटी डेट. मैच्योरिटी डेट इज मतलब 5 साल तक का है ना, तो 5 साल तक यू आर नॉट एबल टू विड्रॉ द मनी. ओके, वंस द 5 years are over, दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी डेट. ओके, अगर मैच्योरिटी डेट के पहले निकाला आपने पैसा तो योर इंटरेस्ट रेट will be reduced. Okay, and the main point here is here there is more rate given than a regular savings account. Regular savings account we have learned in the previous video, so go and watch that video. Okay, now this fixed deposit is issued by banks. Okay, SBI बोलो, Axis Bank बोलो, ICICI Bank बोलो, या फिर NBFI. NBFI also I have told in the previous video. Okay, so please go and watch that previous video. Sometimes this fixed deposit it may or may not require creation of separate account. So it's according to the policies of the bank. Okay, अगर उन्होंने बोला सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट करने के लिए तो यू हैव टू, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड थर्ड टाइप इज स्टॉक्स. सो व्हाट आर स्टॉक्स? एज आई सेड, शेयर्स होता है. शेयर्स मतलब उसको स्टॉक से बोलते हैं. वाई शेयर बोलते हैं? बिकॉज द कंपनी and you as an investor, you are sharing the assets of the company. Okay, so it's a security that represents partial ownership of a company. So company is the main owner and you are also a owner, but you are not a full owner, you are partial owner. मतलब ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी कंपनी आपकी है. Okay, थोड़ा ही आपका शेयर रहता है, but that share is very important. Okay, because whatever money you invest in the company, that money is used by the company for their expenses, for their as their capital. Okay, basically अगर आपने पैसा निकाला तो उनका नुकसान होता है, तो अभी आप लोग को कुछ लोग गिफ्ट देना चाहिए बिकॉज यू आर हेल्पिंग द कंपनी. ओके, तो व्हाट इट डज इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शेयर. लाइक इक्विटी शेयर लेता है, प्रेफरेंस शेयर लेता है, डिपेंड्स ऑन दैट टाइप. ओके, इक्विटी शेयर रहेगा तो आपको कभी कभी मिलता है डिविडेंड या फिर नहीं भी मिलता है.
प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो यू हैव टू कंपल्सरीली गेट द डिविडेंड। ओके, अगर नहीं मिला तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सो हियर यू गेट डिविडेंड एज रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज बॉन्ड्स। नाउ व्हाट आर बॉन्ड्स? दीज आर सिमिलर टू स्टॉक्स, बट स्टॉक्स कैसे आपने इन्वेस्ट किया रहता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया रहता है, बट बॉन्ड्स एक्ट एज अ लोन। ओके, तो डेट सिक्योरिटी दैट represents a loan from an investor to a borrower. Bonds are generally issued by the government. तो गवर्नमेंट के पास से आप लोग एज ए इन्वेस्टर यू टेक द बॉन्ड्स। ओके, तो बेसिकली यू आर गिविंग अ लोन टू द borrower, दैट इज द गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट को आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसीज। ओके, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। Debentures are similar to bonds. Okay, here who is the borrower? Bonds में the government is the borrower. Debentures में the joint stock company which is there, that joint stock company is the borrower. Okay, तो इधर debentures में भी आप लोग को इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी जो रहती है वो आप लोग के पास से बोरो करती है पैसे। सो वॉट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड, दैट मनी द कंपनी यूजेस एज अ कैपिटल, बट हियर इंटरेस्ट देना पड़ता है बिकॉज इट्स अ लोन। ओके, स्टॉक्स इज नॉट अ लोन। नाउ द नेक्स्ट टू टाइप्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? Risk management is basically whenever you sense a crisis or a risk, you have to identify it. Identification of the risk. Okay, मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत मतलब ना रात को अगर कभी कुत्ते अचानक आवाज़ करते हैं तो कैसे होता है, कुत्तों को ना अर्थक्वेक वगैरह दे कैन सेंस इट। ओके, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो यू आर एबल टू रिकग्नाइज, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस, अभी एग्जैक्टली क्यों कुत्ते आवाज़ कर रहे हैं वो आप लोग को ढूंढना है। ओके, वो एक बार पता चला कि अभी कुत्ते को ना अर्थक्वेक सेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर बार्किंग, तो दैट इज द एनालिसिस पार्ट। एंड एक्सेप्टेंस और मिटिगेशन, इधर एक्सेप्ट करो, आप लोग के पास किधर भागने के लिए जगह नहीं रहेगी तो एक्सेप्ट करो, या तो मिटिगेट करो, टेबल वगैरह किधर मिल जाए तो उधर अंदर छुप जाओ। ओके, सो मिटिगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ दिस वॉज इन रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में ही होता है ये सब, बट दिस वॉज आउटसाइड द कंपनी, दिस वॉज नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। नाउ दिस रिस्क मैनेजमेंट शुड बी देयर इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अभी इन्वेस्टमेंट में कैसे होता है कि आप लोग को अगर कल को शेयर्स परचेस करना है या फिर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स कुछ परचेस करना है आप लोग को, तो उधर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिस्क, मतलब ये कंपनी अच्छी खासी गुडविल वाली है या नहीं। ओके, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यू शुड बी एबल टू सेंस द रिस्क। ओके, या तो कंपनी आपके पैसे लेके भाग जाएगी या तो नहीं भागी, अच्छी कंपनी निकली तो भी आप लोग को डिविडेंड वगैरह जो भी मिलता है वो बहुत कम मिलेगा। सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिस्क, यू शुड बी एबल टू एनालाइज इट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो प्रॉब्लम की वजह से, एंड देन इधर एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। अगर कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट करो, अगर कुछ कर पा रहे हो तो मिटिगेट करो, यानी कि एक्शंस लो उस पर, वो प्रॉब्लम जो है, रिस्क जो अराइज हो रहा है वो मिटाने के लिए मिटिगेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, एंड द लास्ट वन इज पोर्टफोलियो बिल्डिंग। So it's a well diversified financial portfolio including stocks, bonds, other assets and cash. Okay, so stocks, bonds, other assets and cash जो भी होता है, ये सब जो टाइप्स ऑफ असेट्स लेता है, इन्वेस्टमेंट्स लेता है, ये सब का एक पर्टिकुलर आप लोग को मतलब मैनेजमेंट करना है बेसिकली। आप लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हो ना कि स्कूल से कैसे आप लोग को टाइम टेबल मिलता है, हिस्ट्री का लेक्चर है, साइंस का लेक्चर है, मैथ्स का है, तो वैसे आप लोग को एक टाइम टेबल टाइप ऐसा पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मेट में आप लोग को बनाना है कि मेरे पास स्टॉक्स कितने हैं, कौन सी कंपनी के हैं, कितने अमाउंट के हैं, टोटल फेस वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टेट इन दैट। ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टेट द risks aligned with the investment. So that is portfolio building. Okay,
So that portfolio building helps you to analyze the risks. It helps you to invest the correct amount in the correct company at the right time. ओके मतलब ऐसे नहीं कि आप लोग को पैसे की ज़रूरत 5 साल पहले थी, आप लोग इन्वेस्ट अभी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है उससे. ओके पोर्टफोलियो का दैट इज़ वन बेनिफिट. अनदर बेनिफिट इज़ यू आर एबल टू इन्वेस्ट योर मनी इन द राइट कंपनी. ओके फ्रॉडस्टर कंपनी नहीं रहती है. And you are able to invest the right amount. Okay, so everything you are able to do, all the benefits, maximum amount of benefits are aligned with portfolio building. So these were all the types of investments, and thanks for watching the video. Please like, share, subscribe.